پر محمد و آل جزاک محمد بلند اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد آل بیتہ اللهم صل على الطاہرین محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال حق سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر ما قدمت لغد. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو علی کل شین قدیر، شہرگ گردن سے زیادہ قریب، کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ رب دو جہاں کہ جس نے زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، شجر و قمر، لوح و قلم، کائنات کی ہر شے رب دو جہاں نے اپنے بندوں کے لیے خلق کی اور بندوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا۔ تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے اور تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی برگزیدہ کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سورہ حشر کی یہ آئے مبارکہ کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس اس بات کے اوپر غور کرے اس نے اپنی زندگی کے لیے، اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج پہلی محرم الحرام کہ جہاں فرش عزا پر ہم اس یقین، ایمان اور اس عقیدے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ ظاہری طور پر تو ہم فرش پر ہیں لیکن حقیقتاً یہ مجلس عرش پر ہے۔ یہ ذکر خدائے کریم نے اس دنیا کے خلق سے پہلے تمام انبیاء سے، تمام اولیاء سے اس کا اقرار لیا۔ 1400 برس کے بعد یہ 1400 برس قبل یہ واقعہ رونما ہوا ارض نینوا کے اوپر، کربلا کے اوپر سن 61 ہجری میں، کہ جہاں ایک ایسی قربانی کو پیش کیا گیا کہ جس کی بنا کے اوپر آج انسانیت میں، انسانیت کی، انسانوں میں انسانیت کی رمق باقی ہے۔ ہم دیکھیے کہ جہاں ذکر فرش عزا کے اوپر آ کر ذکر کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان ہستیوں کا تذکرہ کہ جن کے صدقے میں خدا کریم نے تمام عالمین کو خلق کیا۔ بچے میرے سامنے موجود ہیں اور آپ سب کے توسل سے کچھ باتیں، کچھ عناوین آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ ذکر ابا عبداللہ الحسین، اس ذکر میں گریہ کہ جہاں معصومین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جس کا ایک آنسو بھی شہید کربلا کے مصائب پر اگر آنکھ تر ہو جاتی ہے تو خدا کریم اس انسان پر لطف و کرم فرماتا ہے اور اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جنت کو اس کے اوپر واجب کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس بات کی طرف متفکر ہوں، ذکر کیسا ہے کہ اس ذکر میں ایک مرتبہ اگر ایک آنسو معرفت کے ساتھ ہماری آنکھوں سے جاری ہو جائے تو خدا کریم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کیا ہے ایسا
کہ ہم پوری زندگی بہت سی عبادتیں کرتے ہیں جو ہم پر واجب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، تمام عمل بالمعروف عن المنکر کو سر انجام دینا واجب ہے. لیکن اس آنسو کے اندر ایسی کیا قیمت ہے کہ خدا کریم اپنے بندوں کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ جو معرفت کے ساتھ گریہ کرے گا ہم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. اب ہم یہاں غور کرتے ہیں کہ جیسے خدا کریم جب حدیث قصہ میں، آپ سب لوگ پڑھتے ہیں نا حدیث قصہ، کہ جس میں خدا کریم قصیدہ پڑھتا ہے، قصیدہ کی صورت میں پڑھتا ہے کہ جب پنجتن پاک چادر قصہ کے اندر آ گئے، اور اس چادر قصہ کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کے بھائی امام مولا متقیان علی بن ابی طالب، ان کے بیٹے نواسے امام حسن، امام حسین اور ان کی دختر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ جب اس یمنی چادر کے اندر آ گئے تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. اور اس وقت پروردگار نے یہ قصیدہ پڑھا کہ میں نہ بچھاتا زمین کا فرش، نہ بناتا آسمان کا شامیانہ، نہ بناتا شجر و قمر، نہ بناتا لوح و قلم. میں کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا اگر میں ان 5 نفوس کو خلق نہ کرتا جو اس چادر قصہ کے نیچے موجود ہیں. اب دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہستیوں کا ذکر کر کے کہے میں کسی شے کو خلق ہی نہ کرتا، میں بناتا ہی نہیں کسی شے کو، اگر میں نے بنایا تو ان کے صدقے میں بنایا. تو آپ دیکھیے جب ان ہستیوں کے اوپر کوئی مشکل آئے گی، جب ان ہستیاں، یہ وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے میں خدا کریم نے کائنات کی ہر شے کو خلق کیا، عالمین کو خلق کیا، اور ان ہستیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کیا. کس لیے پیش کیا؟ کہ جب دین کے اوپر حملے ہو رہے تھے، ایسے حملے کہ جہاں باطل قوتیں برسر پیکار تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی دین نہیں تھا، کوئی اسلام نہیں تھا، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا کہ جو انہوں نے حکومت اور اقتدار کے لیے اختیار کیا. اور اس وقت اسی چادر قصہ کے ایک فرد امام حسین علیہ السلام نے یہ عزم دیا اور اپنے خانوادے کو لے کر مدینہ منورہ کو 28 رجب المرجب کو چھوڑ دیا کہ یہ دین خدا کا دین ہے، یہ سلامتی کا دین ہے، یہ امن کا دین ہے، یہ ایثار اور قربانی کا دین ہے، یہ محبتوں کا دین ہے، یہ حکومت کی طلب نہیں ہے. اور یہی وجہ کہ ایک مقام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا قصیدہ پڑھا اور جب کہا کہ میں نے انہی کے صدقے میں کائنات کی ہر شے کو خلق کیا، اور جب اس دین کے اوپر آنچ آئی تو اسی ایک فرد نے چادر قصہ کے مولا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی اور اپنی اولاد کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دین کی اساس کو قائم کیا. آج دیکھیے دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، وہ مولا ابو عبداللہ الحسین کی اس قربانی کی وجہ سے ہیں. تو جب خدا نے ان کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا تو اب دیکھیے جب مولا حسین اس خانوادے کے پروردہ کہ جن کے صدقے میں پروردگار نے جناب آدم کی توبہ کو قبول کیا. اور یہ واقعہ آپ کے سامنے بھی گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا اور اس وقت انہیں خدا کریم نے زمین پر ان کی زوجہ کے ساتھ بھیج دیا. اب وہ دونوں الگ الگ تھے، گریہ کر رہے تھے، جدائی تھی، گو کہ جنت میں جناب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک ساتھ رہا کرتے تھے. لیکن جب ان سے ایک غلطی ترک اولا ہوا، سرزد ہو گئی، تو خدا کریم نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور یہ کہہ کر کہ شیطان تمہارا
अदुए मुबीन है जो तुम्हें चारों तरफ से बहकाएगा। उस वक्त जनाब आदम ने तौबा की, आवाज कुदरत आई कि आदम साके अर्श के ऊपर देखो। साके अर्श क्या है? यानी आसमान की बुलंदियों के ऊपर। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने देखा इन 5 नफूस के अस्मा थे। आवाज कुदरत आई कि आदम इन अस्मा को पढ़ो, या मोहम्मदो, या अलियो, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, और इनके मोहम्मद मोहम्मद अच्छे, और इनके तवस्सुल से दुआ करो। और जब जनाब आदम ने इन हस्तियों का जिक्र किया, इनका नाम लेके दुआ की, खुदा ने जनाब आदम की तौबा को कबूल किया, और जनाब आदम और जनाब हवा एक दूसरे के साथ उस बड़ी जुदाई के बाद मिले। और फिर खुदा ने इन हस्तियों को मुकर्रर कर दिया निजात के लिए। आज क्योंकि ऐसा जमाना है कि जहां दुनिया में कोरोना, बीमारियां, वायरसेस, लेकिन खुदाए करीम का ये लुत्फ व करम है कि उसने हमें इन हस्तियों से मुतमस्सिक कर दिया। अब जिनके सदके में उसने कायनात को खल किया हो, जिनकी कसीदा खानी खुदाए करीम करता हो, और जो उसके दीन को और उसकी इंसानियत को, इंसानों को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने को पेश करें। कि आप जानते हैं ना, मौला अबू अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे खानवादे को कुर्बान कर दिया। किस लिए? क्योंकि सन 61 हिजरी में जब मौला करबला मौला में आए हैं, अपने तमाम खानवादे को, अपने तमाम बच्चों को और अपने साथियों को लेकर फौज लेकर नहीं आए थे, लेकिन यजीद के परवरदा, बातिल और शिर्क की कुव्वतों के परवरदा वो लोग कि जो दीन इस्लाम के मुखालिफ थे, वो मौला हुसैन के मद्दे मुकाबिल आए। क्योंकि वो कहते थे कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, कोई अली वलीउल्लाह नहीं है, कोई दीन नहीं। यानी कि पूरे पैगाम हक को खत्म करने के लिए जनाब अब्दुल्ला हुसैन को शहीद करने के लिए उन्हें करबला की जमीन पर लेकर आए। और आप सब जानते हैं कि जब मौला हुसैन ने अपनी औलाद की अपनी कुर्बानियों को पेश किया, और आज रुए अर्ज के ऊपर जितनी हमें तकबीर की, अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई देती हैं, जितनी नमाजें, जितनी इबादतें और जितनी अच्छे अमूर, अच्छे काम हमें दुनिया में दिखाई देते हैं, वो मरहून मिन्नत है मौला अब अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी के। तो आप देखिए कि जिस दीन को बचाने के लिए मौला हुसैन अपने पूरे खानवादे को कुर्बान कर रहे हैं, तो फिर खुदाए करीम पर भी ये हक बनता है कि अब अगर कोई इमाम हुसैन और उनकी मजलूम आल का जिक्र करेगा, याद करेगा, और उनके गम में गिरिया करेगा, आंसू बहाएगा, तो खुदाए करीम पर भी ये वाजिब है कि उन अज़ादारों को, उन मातमदारों को, उन फर्श अज़ा को जीनत देने वालों को, और जो हकीकत में इमाम हुसैन की मार्फत रखते हैं, इमाम हुसैन से अकीदत और मवद्दत रखते हैं, और मकसद इमाम हुसैन को समझते हैं। मकसद इमाम हुसैन की जो इंसानियत का दर्स है, और फिर इस जुल्म के ऊपर आवाज उठाते हैं और रोते हैं, तो परवरदिगार के ऊपर भी वाजिब है कि वो उन तमाम अफराद को बख्श देता है और उन पर जन्नत को वाजिब कर देता है। अब इसीलिए खुदाए करीम ने सूरह हशर में क्या कहा, मक़द्दमत लिग़दिन, के वल्तंजुर, और तुम में से हर नफ्स इस बात के ऊपर गौर करे कि उसने अपनी आगे वाली जिंदगी के लिए क्या भेजा है। यानी हमें मुस्तकिल इस दुनिया में नहीं रहना। खुदाए करीम ने एक कम 1,24,000 अंबिया को भेजा। खुदाए करीम ने 4 मासूमीन को हमें अता किया। इनकी हयात मुबारका हमें जिंदगी की आसास देती है। हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, कोई चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। जो मकान, जो चीजें मौजूद है, सब यहाँ रह जाएंगी। क्या जाएगा?
अच्छाइयां जाएंगी, नेकियां जाएंगी, सच्चाइयां जाएंगी, आपकी और मेरी वाबस्तगी जाएगी। वो वाबस्तगी के जो हमने कितना ताल्लुक इन हस्तियों से रखा है। किन हस्तियों से? ये हस्तियां कि जिनके सदके में खुदाए करीम ने इस तमाम आलम को खल्क किया। अब अगर हम सच्चे दिल से, यकीन से इन हस्तियों से मोहब्बत करेंगे, और इनसे मोहब्बत का मतलब यह है कि हमें इनकी हयात मुबारका के बारे में पता हो कि इनकी जिंदगी कैसी थी। खुदा ने इन्हें रोशन चराग बनाकर भेजा। खुदा ने इन्हें ऐसा बनाकर भेजा कि इन्हें हम देखें और फिर इस दुनिया में जिंदगी को गुजारने का रास्ता मुअय्यन करें। हमें पता चलेगा कि एक अच्छी बेटी कैसे हुआ करती है। हमें पता चलेगा कि एक अच्छी माँ कैसे होती है। हमें पता चलेगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये जबान जो खुदा ने दी है ये सच बोले, ये आंखें जो खुदा ने दी है वो अच्छी बातें देखें, ये हर आन खुदा की नेमतों को गिने। कितनी नेमतें हैं जो खुदाए करीम ने हमें अता की है। देखें, आंखें देखती हैं, जबान बोलती है, कान सुनते हैं। उस परवरदिगार ने, अभी आप सबको पता है कि हम सब बहुत ऐसे जमाने से गुजर रहे हैं कि जहाँ वबाएं, वायरसेस कुछ तो बीमारी की सूरत में है और कुछ ऐसी सूरत में कि जो हमारी रूह को बीमार कर देती हैं, हमारे नफ्स को बीमार कर देती हैं, कि जिसकी बिना के ऊपर हम अपने मकाम को देख ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम दुनिया की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे, हमें दुनिया का फेम नजर आएगा। अब जैसे आजकल के जमाने में बच्चे बहुत ज्यादा कार्टून देखते हैं, चीजें देखते हैं, उसपे क्या है? फरेब है, धोखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी बिना के ऊपर हम कुछ हासिल कर सके। अब आपने देखा है ना ये कार्टून कैसे बनते हैं? एनिमेशन है। एनिमेशन इस सूरत में है ना कि कुछ करेक्टर बना दिए गए और उनको दिखाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए रोल मॉडल तो नहीं है ना। हमारे लिए तो रोल मॉडल वो हस्ती होने चाहिए कि जिनका जिक्र खुदा कर रहा है, कि हम अब रोल मॉडल उनको बनाए। कि देखिए, जब हम करबला वालों का जिक्र करते हैं, इमाम हसन हुसैन का जिक्र करते हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु का जिक्र करते हैं, मौला अली का जिक्र करते हैं, तो ये वो हस्तियां, बुलंद आवाज में सलवात भेजिए। तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए कि जो एनिमेशन, जो कार्टून, जो चीजें आप देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हमें जानना है हम इंसान हैं, खुदाए करीम ने हमें अशरफुल मखलूक बनाकर भेजा और फिर उसका एक ये लुत्फ़ो करम है कि उसने इन चहारदा मासूमीन से हमें मुतमस्सिक कर दिया। अब हम पर ये फर्ज है कि हम इन हस्तियों का तज़किरा करें, इनका जिक्र करें, इनकी हयात मुबारका, इनकी लाइफ के ऊपर बात करें, ताकि जब इनकी लाइफ के ऊपर बात करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। हमारी जिंदगी में सच होना चाहिए। भाई एक चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहूंगी कि देखें, हम दो चीजें लेकर आए हैं। एक हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह है। जो हमारा जिस्म है वो इस दुनिया की मादी चीजों से बना है। किन चीजों से बना है? आग, पानी, मिट्टी, हवा। यानी अब हम मुस्तकिल इसकी तकमील के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इस जिस्म के लिए हम हर वक्त अगर मुतवज्जा रहते तो इसका मतलब है कि हम पूरे फोकस सिर्फ दुनिया की तरफ है। जबकि हम खुदा के अमर से इस रूह अर्ज पे खुदा ने हमें भेजा है, और वो है रूह। अगर देखें, इंसान हो और उसमें जिंदगी ना हो, रूह ना हो, तो हम सब उसके जिस्म को फौरन ले जाते हैं और उसे हम दफन कर देते हैं। क्योंकि जब तक रूह हमारे जिस्म के अंदर है, इसका मतलब है कि हम जिंदा हैं। असल चीज हमारी रूह है। और हमें इन मजालिसों में आज पहली मालूम अलाराम में अपना अपना मुहासबा करना है और देखना है कि हम कितने दुनिया के बंदे हैं और कितने हम खुदा के बंदे हैं। जब हम खुदा के बंदे होंगे तो हमें इन हस्तियों से अपने आप को मुतमस्सिक करना होगा, इनकी हयात मुबारका, इनकी जिंदगी के ऊपर बात करनी होगी। हमसे दुनिया में रहते हुए
बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जब एक तर्क औला हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि देखो इस दरख्त का फल ना खाना, इसके करीब ना जाना। आपने ये वाकया सुना है ना आदम और ईव का, कि जब वो जन्नत में थे दोनों, और उस वक्त अल्लाह ताला ने एक खास दरख्त के ऊपर, कि जिसे शजर तैयबा या बीबी मोहम्मद आले मोहम्मद का शजर कहा जाता है, कि उस शजर के पास मत जाना, उसके फल को ना कहना खाना। लेकिन शैतान ने गुमराह किया, और इस सूरत में गुमराह किया कि और कहा कि मैं तुम्हें फल ला के दे दूंगा। आज के जमाने में भी ऐसे ही होता है, और शैतान भेष बदल कर आया और उसने वो फल जनाब आदम और जनाब हवा को वो दे दिया, और जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, खुदा करीम ने उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया, और उन्हें फिर ये वो बता दिया कि अब तुम्हारा ये खुला हुआ दुश्मन है शैतान, वो ऐसे ही वसवसे डालता है। हम फर्श अज़ा पर, मजलिस अज़ा पर आकर एक दूसरे के साथ इन बातों को करके, सोच करके कहाँ कहाँ पर शैतान हमें बहका सकता है। तो अब देखिए, मैंने आपके सामने जिक्र किया कि सोशल मीडिया जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जबकि आप देखिए कि वो तमाम चीजें फेक हैं। हमने अपने लिए रोल मॉडल उन हस्तियों को बनाना है कि जिनकी बिना पर हम इस दुनिया को भी आसानी से ऐसा तरीके से गुजार सके, और फिर खुदा करीम हमें आखिरत में उसका अच्छा अजर अता करे। ऐसा अजर कि जिसमें, क्योंकि जब खुदा करीम सूरह हशर में जब अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है कि तुमने अपनी अगली जिंदगी के लिए क्या इकट्ठा किया है, यानी हमें यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना, हम सबको चले जाना है। तो जहाँ जाना है वहां जाने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो हमारा ताल्लुक अच्छे लोगों से होना चाहिए, सच्चों के साथ होना चाहिए, कि जहाँ खुदा करीम अपने कलाम में कहता है कूनू मा सादिकीन, कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये वो हस्तियां हैं कि जो सच्चे हैं, साबिरों के साथ हो जाओ, कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सब्र किया, खुदा की आजमाइश और मुश्किल जो उन पर आई, उन्होंने ऐसे सब्र किया और खुदा से तवक्कुल किया, उस पर आसरा किया। और आज आप देखिए कि जो जो लोग मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ दुरूद भेजिए, अपने आप को इनसे मुतमस्सिक रखते हैं, इनको अपने लिए रोल मॉडल बनाते हैं, उन्हीं की दुनिया भी कामयाब होती है, उनकी आखिरत भी कामयाब होती है। और इन मजालिसों में हम कोशिश करेंगे कि हम मुस्तकिल इन्हीं अनवीन के ऊपर गुफ्तगू करें, और जिस्म की बीमारियों से ज्यादा हमने अपनी सोल की, अपनी रूह की बीमारियों की तरफ तवज्जो देनी है। देखिए कि अगर हम कोई चीजें, हमारे कुछ राबते हैं, कुछ ताल्लुक हैं, यानी हमारे राबते क्या है? आप बेटी हैं तो आपका एक ताल्लुक अपने वालिदैन से है, माँ बाप के साथ है। बहन है तो आपकी ताल्लुक अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ है। कुछ रिश्ते हैं, तो जब ये तमाम रिश्ते, तो खुदा ने बना कर भेजे ना, हम खुद तो रिश्ते चुनकर नहीं आए ना, खुदा ने रिश्ते बनाकर भेजे। उसने हमें भेजा कि हम एक घर में आए, उसमें उसने हमें शफीक माँ बाप दे दिए, उसने हमें बहन भाई दे दिए, उसने हमें दादा दादी दे दिए, उसने हमें नाना नानी दे दिए, उसने हमें चचा ताए मामू खाला, ये सारे रिश्ते उसने हमें दे दिए। अब हमें उन रिश्तों के साथ एहतराम के साथ रहना है। तभी आप बच्चे हो ना, इसलिए मैं आपके जरिए से ये तमाम बच्चों तक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि जितने अच्छे हम होंगे, और ये अच्छाई हमें इसी दर से मिलेगी, इसी खानवादे से मिलेगी। क्योंकि जब खुदा कहता है ना, मैं ना बिछाता जमीन का फर्श, हदीसे किस्सा हम पढ़ते हैं ना, न बनाता आसमान का शामियाना, न बनाता शजरो कमर, न बनाता लोहो कलम, मैं कायनात की किसी शय को खल्क न करता अगर मैं इन हस्तियों को खल्क न करता। तो ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी मार्फत रखना, जिन्हें जानना हम पर वाजिब है। और कल से हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग भी हम मेरे साथ बैठकर इस बात पर कि हम इन हस्तियों से हमने क्या हासिल किया है, इनकी जिंदगी कैसी जिंदगी थी, और हमने
मकसद करबला को कैसे समझा है। मकसद करबला ये है कि इस दुनिया का सफर जो हमारा है, इसमें बंदगी हो, इसमें इताअत हो, इसमें आजिजी हो, इसमें नेकियां हो, इसमें अच्छाइयां हो। और आज की हद तक सबसे बुरी बात क्या होती है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे के लिए जो उसके अंदर वो बुराई नहीं होती, अगर वो लोगों में उसकी कोई बात को आम करता है, उसके लिए लोगों में गलत बयानी करता है, वो सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि आप देखिए हमारे पहले इमाम अली के लिए भी तो यही कहा गया था कि बनी उमैया के लोगों ने दुनिया में ये मशहूर कर दिया था कि अली नाउज़ुबिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। जो मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत महराब मस्जिद में हुई तो लोगों ने ये कहा कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे। यानी ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये हमारे आइमा के ऊपर हुआ। और अगर आज की जिंदगी में, आज के जमाने में हम में से किसी में अगर ये गंदी और खराब आदतें हैं कि हम अपने मोमिन बहन भाइयों के लिए लोगों के सामने गलत बयानी करते हैं, उनकी उनकी ख्यालात को, उनकी जिंदगी को, उनके किरदार कशी करते हैं, इसका मतलब है ये वो गुनाह है कि जो बनी उमैया ने किया। और हम इन मजलिसों में बैठकर इन्हीं बातों को याद करते हैं कि हमने वैसा नहीं होना, हमने हिफाजत करनी है अपनी भी, क्योंकि इसमें हम किसी और का नुकसान नहीं करते, अपना नुकसान करते हैं। आज पहली मुहर्रमुल हराम है, फर्श अज़ा बिछ गई। हम क्यों फर्श अज़ा बिछाते हैं? और एक और बात आपको बताऊं कि देखिए कि जब हम देखते हैं ना कि हर मुहर्रमुल हराम चाहे गर्मी में आए या सर्दी में आए, हम में से कोई ये नहीं कहता कि जब गर्मी होगी, सर्दियां होंगी तो तब हम मजलिसें कर लेंगे, तब हम इमाम हुसैन का जिक्र कर लेंगे। बल्कि जैसे ही मुहर्रम हराम का चांद नजर आता है, हम सब फर्श अज़ा पर आ जाते हैं, क्योंकि ये एक माँ की दुआ है। ये किस माँ ने दुआ की थी? ये बीबी फातिमा ज़हरा सामने अल्लाह ने दुआ की थी। उस वक्त दुआ की थी कि जब अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को बताया कि ये तुम्हारा फर्जंद हुसैन जो है, ये दीन की खातिर अपनी जान के नजराने को पेश करेगा, ये मेहमान होगा, ये करबला में मेहमान बुलाया जाएगा और फिर इसकी मेहमानी ऐसे की जाएगी, इसे 3 रोज का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि इमाम हुसैन के साथ कौन कौन गया था। इमाम हुसैन के साथ उनका 6 महीने का अली असगर था। आपके भी तो छोटे बहन भाई हैं ना, कितने प्यारे होते हैं। इमाम हुसैन के पास भी एक छोटा सा बेटा था, एक बेटी थी बीबी सकीना कि जिसकी उम्र 3 साल की थी। अब आप देखिए इमाम हुसैन इस दीन को बचाने के लिए अपने खानवादे को लेकर गए। कितना कितने प्यारे होते हैं ना छोटे बहन भाई। आप देखिए कि बीबी सकीना को कितना प्यार था अपने छोटे भाई अली असगर से। और जब करबला के मैदान में जब अली असगर को ऐसे तीर से शहीद किया गया, आपने देखा ना छोटा बच्चे की गर्दन कितनी छोटी सी होती है, और रिवायतें कहती हैं कि तीर सा शोभा, वो ऐसा तीर था, क्या कहते हैं कमान, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन एंड एरो। तो जो एरो था उसके 3 फल थे उसमें, यानी कि 3 उसमें नोकें लगी हुई थी कि हजरत अली असगर के गर्दन के ऊपर जब उस तीर से वार किया गया तो वो छोटा सा बच्चा अपने बाबा की गोद में उस तीर और अपने बाबा की गोद में मुअल्लक हो गया, और मौला हुसैन उस गुर्बत में देख रहे थे। अब देखें तसव्वुर की आंख से देखिए, हम उस करबला में जा रहे हैं, वो करबला कि जो इमाम हुसैन मदीने को छोड़कर आज पहली मुहर्रम है, आज पहली मुहर्रम में इमाम हुसैन आलम सफर में थे। अभी करबला थोड़ी सी दूर थी और इमाम हुसैन ने रास्ते में चांद को देखा। जब चांद नजर आया तो उस वक्त जब चांद नजर आया
उस वक्त इमाम ने चांद को देखा। हमारे यहाँ ना जब चांद मून साइट होता है तो हम सब दुआ करते हैं कि परवरदिगार ये महीना ये साल खैर से गुजर जाए। इमाम हुसैन तो जानते थे। उन्होंने जब देखा और चांद को देखने के बाद इमाम ने अपने तमाम औलादों की तरफ नजर की। इमाम जानते थे कि इस महीने की जब 10 तारीख आएगी मेरा पूरा खानवादा मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरा अली अकबर शहीद कर दिया जाएगा, मेरा अली असगर शहीद कर दिया जाएगा, मेरा घर जला दिया जाएगा। इमाम हुसैन की सवारी 2 मुहर्रम को करबला मोहल्ला में पहुंची थी और उसके बाद इमाम ने वहां खेमे लगाए थे। हम ये जिक्र कर रहे हैं। अब इस तरह से पुरसा पेश करना कि महसूस करना कि जैसे आपके साथ वो 3 साल की बच्ची मौजूद है कि जिसके बाबा को शहीद करने के बाद इसके रुखसारों के ऊपर तमाचे मारे गए। आपके साथ वो बीबियां बैठी हुई हैं कि जिनके सर से चादरों को छीन लिया गया। आपके साथ वो हस्तियां बैठी हुई हैं कि जिनके खानवादे को करबला से लेकर शाम तक बेमकनो चादर के फिराया गया। ये करबला वालों की कहानी है और हम फर्श अज़ा पर बैठे हुए पुरसा पेश करते हैं इस यकीन के साथ कि परवरदिगार हमें हकीकी माने में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मार्फत अता फरमा दे। हमें उनकी मार्फत अता फरमा दे कि जिनके सदके में तूने कायनात को खल किया। और आप देखिए कि जो 3 बरस की बच्ची है ना सकीना, इस सकीना के मजाइल कितने ज्यादा है। आपको पता है कितने 3 साल की एज बहुत छोटी एज होती है। और बीबी सकीना कि जिनके बाबा को उनके सामने शहीद किया गया और बीबी को इस सूरत में ऊंट के ऊपर बिठाया गया कि जहां बीबी के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। अब आपने कभी कैमल देखा है ना कि कैसे उसकी ऊपर उठी हुई उसकी कमर होती है। और रिवायतें कहती हैं कि उस 3 साल की बच्ची को सकीना को उस कैमल के ऊपर सीने के बल लिटा दिया गया। सीने के बल जब लिटाया गया और फिर उसे रस्सियों से बांध दिया गया। जरा मेरे साथ थोड़ा सा तसव्वुर कायम करो। आज जब सकीना करबला की तरफ जा रही है ना तो ऊंटों की सवारी पर ही बैठी है सकीना। आज सकीना अपने बाबा के साथ है। इमाम हुसैन अपनी बेटी को अपनी गोद में देते हैं, प्यार करते हैं। इमाम हुसैन कभी जनाबी अली अकबर अपनी बहन को प्यार करते हैं। आज सकीना कभी अपनी फूफी की गोद में है, कभी अपनी माँ की गोद में है। आज बीबी सकीना अपने छोटे से भाई अली असगर को गोद में लेती है। जानती है बीबी कि मेरा जानती नहीं है बीबी कि मेरे भाई को कैसे शहीद किया जाएगा। आज सकीना इतने इस अंदाज में कभी हजरत अब्बास के जो बीबी सकीना के चचा है कभी अपने चचा की गोद में आ जाती है। सोचा भी नहीं है कि मुझ पर आज से 10 दिन के बाद सकीना के ऊपर कितने मजालिम आएंगे। वो सकीना कि जो बाबा के सीने पर सोती थी, वो सकीना जो अपने चाचा की गोद में आती थी, वो सकीना कि जिसके नाज उसकी माँ उठाती थी, उसके भाई उठाते थे। वो नन्ही सी सकीना कि आज जो इस तरह से सफर कर रही है कि एक गोद से दूसरी गोद में है। लेकिन बच्चों जब मुहर्रम की 10 तारीख आएगी इस सकीना के कानों से गोशवारे छीन लिए जाएंगे। ये बीबी हैरान होकर कहेगी कि मैं यतीमा हूँ। मेरे बाबा ने जब बाबा को ये खबर लगी थी कि हजरत मुस्लिम शहीद कर दिए गए हैं तो मेरे बाबा ने उनकी बच्चियों के कानों में गोशवारे पहनाए थे, उन्हें प्यार किया था। मेरे बाबा ने मुझे ये कहा था कि मैं बहुत जल्द मैं यतीम हो जाऊंगी, मैं यतीमा हूँ, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। आज आप ऐसे पुरसा पेश करें
اس سکینہ کا ذکر یاد کر کے کہ وہ سکینہ کی جو 3 برس کی تھی، آج میں سفر ہے، اور 10 دن کے بعد جس کے بابا کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے گا، جو ہر آن اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی، آج پہلی محرم میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ مالک تجھے ان غریبوں کا واسطہ ہمیں حقیقی معنوں میں مقصد کربلا، مقصد عزاداری، ہمیں گریے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مقصد کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے اس دور میں کہ جہاں پوری دنیا ظلم اور جور سے بڑھی ہوئی ہے، کہ جہاں پر ہمیں ہر طرف برائیاں نظر آتی ہیں، خدا کریم کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار ان تمام نفسانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں صحت مندی عطا فرما۔ پروردگار میرے بچے بیمار ہیں، میری بیٹی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، کریم تجھے کربلا والوں کا واسطہ، پروردگار تجھے واسطہ، سکینہ کی غربت کا واسطہ کہ جو اپنے بابا کو یاد کرتی رہی، پروردگار جو بیمار ہیں جہاں جہاں پر صحت کاملہ عطا فرما، جو پردیس میں خیر سے اپنے گھروں کو آئے، میرے بچے بھی ہم سے آ کر صحت و سلامتی کے ساتھ ملیں، جہاں جہاں پر فرش ازا ہو رہی ہے، پروردگار ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ فرش ازا بچھانے کی توفیق عطا فرما، ذکر حسین معرفت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے رومال کی زینت بنا دے۔ کریم جلد آ کر مولا حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے سچے اوان انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔